Good afternoon, London, and good evening, India. My name is Radha Binod Sharma. I am a founder of imafoundation.com. I will explain later on all of details. First of all, today is our 74 Independent Day, 15 August. Jai Hind. Jai Hind. So, that will be details will be Dayati will say later on all of details about 15 August. So right now this program is called Anubhav Jana. Anubhav Jana, Jana means in Sanskrit, Gyan means knowledge, Anubhav means your feelings. So group is run by Anubhav Jagaran, and that will I will later explain, and Akansa will explain properly later on. And we got two different programs, and we'll be doing art with oil, so that will be quite dynamic. First, we are starting introduction Khatu Sapera. Then second will be coming Guru Mayum Guru Bisheshwar Sharma from Manipur. Thangta is endangered art. And our Manipur, all of parampara lifestyle is inside of the Thangta, how to behave, Thaksi Khasi, in Manipuri we call, how to behave, how to understand elder and junior, all of inside is. So we'll talk about very soon. First, we want to talk about Khatu Bahen is very, very experienced person. She visits lots of part of the world. She is a fantastic dancer. She is very famous, and you will see when she start dancing. So art is like that. Until you see, you can imagine, you can understand. Even artists also, when we do the painting until finish, we can understand who am I. Soon as we finish, I say, wow, I can do this as well. So Khatu Bahen, namaskar. नमस्कार। Khatu Bahen, आप मैं कहाँ से, आप क्या, हिंदी थोड़ा बताइए। बोलूंगी। हाँ, बताइए बताइए। मेरा नाम खातू सपेरा है और मैं राजस्थानी कालबेलिया डांसर हूँ और मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ और करीबन मैं 30 साल से कालबेलिया डांस करती हूँ और बहुत सारी जगहों पे हमने परफॉर्मेंस किया है, जैसे कि इंडिया में और इंडिया से बाहर भी, क्योंकि मैं बिल्कुल कभी स्कूल नहीं गई हूँ तो मेरा इंग्लिश थोड़ा बैड है और मेरा हिंदी भी आई थिंक आप सबको समझ में आएगा या नहीं, पर मैं आशा करती हूँ कि आप सबको समझ में आएगा। तो अगर मेरे से कुछ मिस्टेक हो जाए तो प्लीज आप माइंड मत करना, क्योंकि मेरा हिंदी भी थोड़ा ऐसे ही है। तो मैंने मेरी लाइफ में बहुत सारी जगह पे परफॉर्मेंस किया, जैसे कि अमेरिका में, लंदन में, एलिजाबेथ हॉल में हमने एक शो किया था और उसके बाद फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड एंड दुबई, सब जगह। मतलब एक जगह है जहाँ पे मैंने नहीं किया, मेरा प्रोग्राम नहीं किया मैंने, और मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, लाहौर। आई होप कि मैं जाऊंगी पक्का, एक बार पाकिस्तान जाना चाहती हूँ। ये है, और आज मैं और मेरी बेटी आप सबके सामने डांस प्रोग्राम लेके आएंगे और आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा और गुड लक। Khatu Bahen is 30 years experience. She just told she never studied any books and anything, and she's thinking about she can speak properly in English and Hindi. In art, we don't need any language. Art is expression, art is feelings, art is understanding your move. So art is everything. There is international language. So we don't need to worry about that, Khatu Bahen. जो कला होता है ना, उसमें कोई भाषा नहीं होता है, उसमें समझ सकता है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है कला, तो इसमें कुछ चिंता की विषय नहीं है। गुरु विशेश्वर शर्मा is one of the pioneer of Thangta from India right now, and he is son of Guru Mayum Padma Shri
Gaura Kishore Sharma. He was one of the finest Thangta guru in Manipur, and he got Padma Shri 2009 honor of lifetime contribution endangered art of Thangta. Thangta is our one of the top martial art from India, still alive after British left. So Bisheshwar Sharma is look aftering this Thangta called Huen Langlon. Bisheshwar, come to you. What is the meaning of Huen Langlon? Namaskar. The Manipur Thangta known as Hue Lalong. Hue Lalong means this is the art of warrior. From Hue Lalong, many brands are there as self-defense, Sarisarat, Mungnat, and many more. This is the Manipur Hue Lalong is our life. From birth to death, we use this art form. So, And I was practicing this martial art known as Thangta and also known as Hue Lalong. From my father guru, Ji Gaura Kishore Sharma, Padma Shri awardee, he founded this Hue Lalong Manipur Thangta Cultural Association in Room in the year 1958. Still, this is the most oldest and very leading Manipur Thangta school, and we are preserving this rare art form and rare martial art form of Manipur. So many students we have trained for the future generation. this is not India only. This is one of the oldest, one of the ritual form for wall. And Guru Mayum, Guru Bisheshwar Sharma is carry on this Thangta, and we salute to Bisheshwar. What a lovely thing you are keeping for our India and our Manipur. So, Bisheshwar, can you tell me about something about Sarit Sarat? What is the meaning of Sarit Sarat? This is weapons martial art. This is the way of defense and attacking style of Manipuri martial art. This also include in Thangta. Sarit means the Sa means this is our body. Sa means our body. Rit is a escape from possible attack. So if someone attack, we can escape through this Sarisarat. So that is known as Sarisarat. This is very important art form when we facing many problems like possible attack. With the help of this Sarisarat, we can escape. In the warfare, we use sword, spear, many more weapons. But for the time being, the weapon we cannot carry at one time. So the Sarisarat is very important to the the feminines or women's girls. Through this art, we can escape from possible attack in this modern society. Sarisarat is very important art form. Yes, Bisheshwar Sharma is one of the very talented Thangta guru right now in India and Manipur, Imphal. Achieved so many awards, including 13 January 2016 Youth Icon Award. Bisheshwar you got. So Bisheshwar, we love to see this Thangta is coming actually properly in 10 October. Actually, we are going to show full image. Today we are just giving the introductory. So Bisheshwar, we love to see little bit your group Thangta. If you can quickly show it, please. Okay, thank you. We are very happy to live in your channel. We also very interesting to demonstrate in Manipur
Thangta, little bit our girls will demonstrate the Thangbi Marons and the art of fighting style. Let us see. Welcome, sister. Fantastic. Please give a big hand, everyone. No, this. No, fantastic. Please give a big hand, everyone, please. So after this fighting style, so let me show again two more fighting styles, and Okay. they use the sword and the shin. The shin is symbolized as mother god, and the sword is symbolized as father god. Through this swords and shin, we protecting our motherland from the neighbors and from the enemies. So two ladies will be fight each other. So the two female ladies, Shilparani and P. Elia Senu. Come on. Yeah, after Fantastic. this, Fantastic. I think this is called as Thang Sungo Yanava. But now I will demonstrate. The Tripan fight means that Thang Ohum Yanava means Tripan fight. One person and two person are attacking each other. So let us see the three ladies, N. Dainasanu and Sanatombi Devi and Hai Sindhu Devi will demonstrate this Tripan fight. In this martial art, we highly disciplined. Though even if it's an enemy, we respect each other.
Fantastic, fantastic. Really need to clap, everyone. Fantastic. Girls power of Manipur. Girls power of our country. Thank you. So, one little piece of Sarisarat. Let me demonstrate. Okay. Now we see the art of fighting. This is used in the warfare, but in this modern society, we cannot carry our weapon all the time. So the Sarisarat is very important. So one person take a sword. Take a sword. So I'm in my hand is no weapons, but she carry one sword. Suddenly she attacked my neck. In this time, we use the Sarisara technique. Attack this. We catch it here. We can move this sword and attack again here. This stand is known as Sarisara. So after this, let me introduce and see side of our institute. Okay. So let me carry. Quickly show us. Fantastic, everyone. Girls, give the basically girls, give all of you. Please give the big clap to all of girls. Fantastic, fantastic. This is my father's statue. My father expired in 2015, and this is my father's got Padma Shri Award from the President of India in 2009, and this is foundation stone is MP Dr. T. Maina is inaugurated this statue, and Dr. R.K. Nimai Singh, IAS Commissioner, Government of Manipur, and Sri L. Joy Chandra Singh, Registrar Manipur University of Culture is the inaugurate the statue, and this is my father's mamdov for we preserving this mamdov for the sake of my father. Now in India, this was dark. Even though, let me show our campus, and this is our where. This is our school building, and we have youth hostel, and this is our office room. Yeah. This is our office. Yeah, this office is site in the Imphal East district, Irinbung, Imphal East, and I will show you our address, but it's little bit dark. Let me say my contact number. Yes. My contact number is 96121595886. Again, contact number is 96121595886. This is our contact number.
Bishesh sir, And contact number is for UK and outside of India. That will be 0091. This is Indian international number. Then 96121 59586. For India, 96121 59586. So yeah, right. please contact if you are interested to join the Thangta. This is the best place in India, only Manipur, Impal. Thank you, Mrs. Sir. So thank you, Guru Vishesh sir, for showing us the fantastic art form of Manipur and also from India. So as you everyone saw the very enthusiastic and powerful martial art, and this was the spirit. This and many others from all around the country showed the spirit and gave us this independence from the British colonizers. And 15th August 1947 was the day of independence for our country. So I would like I would like everyone to either stand, or if you cannot, kindly put your right hand on your heart, and I will be now playing the national anthem of India. भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तव शुभ नाम जाने तब शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद भारत माता की Jai. So everyone, Now we are going to do the one small meditation that will take 4 or 5 minutes only. We do all the time this meditation. So people who want to join this meditation, just relax your shoulder and hip to your back spinal cord. Try to straight. So relax my shoulder and chin. I'm going to back. I'm relaxed as a position. Tongue, I'm going to up, close your mouth, through nose, take out all of breathing, not from chest, from stomach, little bit squeeze, that take out, then very gently, so in, out, and close your eye, try to make it one golden ring here, and when you take out your breathing, try to touch, take in your breathing, try to touch that golden ring, and any imagination comes, say, go away, I'm not going to listen, just focus on their in, out breathing. Okay, ready?
Very good. So this is just short demonstration for everyone. Everybody, if you can do it every day, that will make you really, really different. Your mind will get totally relaxed. So we do all the time one artwork. So today, in this sequence, Khatu Bahan will be dancing. We sing the Thangta. For imagination, I am going to do the colorful work with watercolor, pencil watercolor. So those are have pencil and paper and color. Please do artwork with me. Our program will be instantly going on. So Khatu Bahan, please welcome. आपकी एक डांस देखना चाहता हूँ. ओके, तो पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेरी बेटी के साथ. बेटी के नाम क्या है? साहिबा सपेरा. साहिबा सपेरा. आकांक्षा को कुछ निवेदन करूंगा कि अनुभव जागरण में रह के आप लोग को क्या सोच मिला. प्लीज आकांक्षा सामने आइए. Good evening, sir. Good evening to all of you. My name is Akansha. I am from Bilaspur, Chhattisgarh. I did engineering in telecommunication. After that, I did MBA in HR and marketing. Anubhav Jagran was formed on April 2020 in this year also. The purpose of this group is to pursue the art and talent of the ladies. The main objective of the group is to give national and international platform to all the ladies in our country. Life changed completely after connecting with Anubhav Jagran. Mentally, I was very upset with lockdown because I left my job, the financial crisis, all that. I have lots of pressure in my mind. But when I met Radha sir in one of my sessions, and he changed the outlook of my life in one session. The time we spent to think, now is the time we spend doing something creative. Now I'm very happy. In addition to coloring in pictures, now life has also become colorful. Now I can draw all my thoughts through art. I do not need anyone to share my points or thoughts. Thank you so much, Radha sir and IMA Foundation for bringing back to me. Thank you so much, sir. Basically, IMA Foundation is established 2008 in London. Motive was how to look after endangered art, indigenous art, and contemporary Indian art and contemporary international art. So from that time, my little motive was if I can look after our world's women, basically. Work start from whom? I start from Tripura. Then I was looking. Then I met Akansha in one of the Zoom program. Then I requested Akansha to form one good art form. We didn't think about anything. Today, this is working with few girls and few boys. We work together, and in Anubhav Jagaran, everything have to be decided by women. I do try to mentor whatever I learn. I'm learning process till now. I'm an artist myself. Since 29 years, I'm doing freelance in art, and we do have registered in London called imafoundation.com 2008 and registered in Tripura 2019, and Anubhav Jagaran is going to be a cultural form for our country and internationally, nationally. So all of girls will be going to be doing lots of practice. Main motto in Anubhav Jagaran is trying to know ourselves. Who am I? Right? Who am I is very important. If I know myself, I can understand other. That's why we have to know our country first, then we can go other countries, brother and sister. Basically, sister have to be look after our world. Sister can change our world. That's my motivation from my mom. So
All done? Yeah. Yeah, Do you want to say anything? No, I just wanted to thank Akansha. That was very touching. Yeah, really, really happy that the program and the group were able to support you. Yeah, it's very touching, Akansha. Because everything is all together. We are with sister. One good thing with all of our men, without women power, man can be a little bit difficult. We might have lots of ego, lots of this and that. We can learn at least manner from our girl, our world girl. Manner we need to learn. Less ego, love. That's I learned from girls. So job have to be carry on. We should not get disappointed. आपको भी एक दिखा दीजिए खातू बहन। जी बिल्कुल, दिखाए दिखाए। अब लोग पेंटिंग चालू रखिए पीस।
क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और क्या बोलूं, क्या बोलूं, बहुत मजा आया। थैंक यू। क्योंकि इतना एक्सपीरियंस, काफी कलबेलिया डांस मैंने देखा है आज तक, आपका जैसा एक्सपीरियंस बहुत कम देखा है। आशा का भी बहुत बढ़िया था, लेकिन आपका भी बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत के ऊपर बहुत। थोड़ा एक दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ और ऑडियंस को भी थोड़ा डांस सिखाइए। एक दो प्रश्न है कि वो नेहा पूछेगा बाद में, लेकिन हम आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपकी बारे में थोड़ा बताइए, सरप्राइज कर दीजिए हम लोग को, सरप्राइज कर दीजिए थोड़ा आपकी बारे में जो जानता नहीं है। अब मालूम है आपने अच्छा डांस किया है, बचपन से करके आए हैं, 5 साल की उम्र से, और 30 साल के ऊपर डांस किया है। उम्र बताने का नहीं, हम बताएंगे भी नहीं, लेकिन औरत की उम्र हम लोग नहीं बताए। आप 25 साल की भी, 25 साल से भी कम लगता है, ऐसा बात नहीं है, आप तो और ब्यूटीफुल। मैं बताना चाहती हूँ, मैं एक बहुत ही गरीब फैमिली से हूँ, और हम लोग जहाँ रहते हैं वो भी एक बहुत छोटा सा गांव है, और अभी हम लोग जोधपुर में हूँ मैं, और हमारा गांव है वो जोधपुर से थोड़ा बाहर है, तो हम लोग वहाँ रहते हैं। और मेरी जो पहले की लाइफ है उसके बारे में मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग कालबेलिया कम्युनिटी से हैं, और कालबेलिया कम्युनिटी भाई साहब जानते हैं कि हमारे बुजुर्ग लोग, जैसे कि मेरे दादाजी, उनके पिताजी, मेरे पिताजी, वो सब लोग पहले के जमाने में, आज से 50 साल पहले जंगलों में जाते थे, सांप पकड़ते थे, और हर एक घर में जाके वो अपना बीन बजा के, सांपों को नचा के, जो भी उनसे मिलता था, खाना, पैसा, कपड़े, और वो अपना काम चलाते थे। और उसके बाद धीरे धीरे सांप कम होने लगे, और बहुत पाबंदी हो गई सांपों के लिए भी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग अपनी लड़कियों को लेके जाएं। एक पिटेरे में सांप था और दूसरे
पिटेरे में बच्चे, मतलब जैसे कि साहिबा हैं अभी मेरे साथ, तो हम लोग कभी भी डांस सीखने नहीं जाते हैं कहीं भी। ये हमारे एक खून में है। तो मैं कर रही हूँ, मेरी बेटी भी कर रही है अभी मुझे देख के, पर मैं उसे कभी नहीं सिखा रही हूँ कि ये करना है वो करना है, और वो मुझे देख के करती है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एंड फिर उसके बाद हम लोगों ने और हमारे परिवार ने सोचा कि लड़कियां डांस करें, फिर साथ के साथ लड़की लोग भी डांस करती थी। हर एक घर में जाके, जैसे कि बच्चा पैदा हुआ वहां जाना, जैसे कि शादी है वहां जाना, सगाई में जाना, और उससे हम लोग अपना पेट पालते थे। उसके बाद धीरे 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 गुलाबो जी सपेरा है फ्रॉम जयपुर से, तो उन्होंने, और हमारे जोधपुर से कालूनाथ जी हैं जो मेरे डांस गुरु हैं, मैंने उनको देखा और उनके साथ मैंने, मेरा जितना बचपन था, मैं 7 साल की थी तब से उनके साथ में काम करने लगी। पर मुझे कुछ भी नहीं मिलता था उस समय, पर कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे इस मुकाम तक पहुंचना था। और गुलाबो जी ने इस डांस को एक नया नाम दिया, जो कि इस डांस का नाम है कालबेलिया डांस। तो आज के जमाने में आई थिंक कि सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में कालबेलिया की जो पहचान है वो किसी और डांस की नहीं है, क्योंकि ये डांस है एक फोक डांस, ये क्लासिकल डांस नहीं है, इसको कहीं सीखा नहीं जाता है। और अभी हम लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, और अभी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं लॉकडाउन के बाद, और काफी जगह से लोग, इंग्लैंड से, फ्रांस से, जर्मनी से एंड अमेरिका से सारे स्टूडेंट आ रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ उस चीज से कि हम लोग कभी स्कूल नहीं गए, और हम लोग इतना जो कुछ भी कर रहे हैं वो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हमारे समाज में लड़कियों को स्कूल नहीं जाने देते पहले, क्योंकि सिर्फ लड़के लोग जा सकते हैं, लड़की लोग नहीं जा सकती। अगर वो स्कूल जाती है तो उसके बाद उसकी शादी में बड़ी दिक्कत करते थे, क्योंकि अभी भी हमारे समाज में ऐसा रिवाज है कि सिर्फ अपने पेरेंट्स देखते हैं लड़के को, लड़के के घर वालों को, और वो डिसाइड करते हैं कि इनके साथ शादी करनी है और बस। तो अभी भी वही रिवाज चल रहा है। और हम लोग जैसे कि आशा है अभी हमारे साथ, एंड वो मेरी छोटी बहन है, जबकि वो सबसे छोटी है हमारे घर में। हम लोग 6 बहनें हैं और सबसे बड़े भाई साहब हैं, और हम लोग 5 बहनें डांस करती हैं, और भाई साहब मेरे हैं जो तबला बजाते हैं, डबल फ्लूट बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं। अभी वो फ्रांस में है, उन्होंने उधर शादी करके रखा है, तो वो अभी फ्रांस में है। खातू बहन बहुत बढ़िया बोला आपने, बहुत बढ़िया बोला। थैंक यू। अभी हम आपकी लॉकडाउन की क्लास में थोड़ा सा मदद कर सकता है, तो इसीलिए आपकी नंबर हम डालना चाहता हूँ। आपकी नंबर एक बार बोलिए। मेरे नंबर है 9929 59 4761। सो फिर धीरे धीरे और एक बार रिपीट करिए। 99 29 59 4761। सो और आपकी कोई फेसबुक है? जी। उसमें खातू सपेरा लिखा है ना? जी। खातू सपेरा KHATU, खातू सपेरा SAPERA, खातू सपेरा। उनकी चेहरा तो देख लिया, ब्यूटीफुल है उनका चेहरा। खातू सपेरा इंस्टाग्राम है आपकी? There you can see Khatu Sapera. If you want to learn dance, now we are going to show few demonstration from Khatuji. So you can go Instagram. You seen her number. She was repeating again. So before that, if you are from outside of India, you have to put 0091 top of that.
This is an international number. So Instagram Khatu Sapera, Facebook Khatu Sapera. फैंटास्टिक खातू बहन। तो खातू बहन थोड़ा डांस दिखाइए आपकी बच्चे लोग के साथ सिखाइए। नेहा, आई एम गोइंग टू हैंड ओवर टू नेहा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज नेहा बेहरा, आई एम फ्रॉम रायगढ़ छत्तीसगढ़। नमस्कार खातू मैम। नमस्ते। हाँ जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा, आपका डांस देखकर बहुत अच्छा लगा मैम। पिछले बार भी आपसे चाहत थी कि आपसे बात हो सके, आप थोड़ा लंबा समय तक हमारे साथ रुक सके, पर आप नहीं रुक पाई काम की वजह से। आपको पुनः देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है आज। थैंक यू। मुझे भी आप लोगों के साथ बात करके और सारी बातें एक दूसरे की शेयर करके बहुत अच्छा लग रहा है। जी मैम, ये तो आपका बड़प्पन है। मैम, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही हूँ कि आप जैसे बता रहे थे कि बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी, डिफिकल्टीज आती थी, तो आप इससे प्रेरणा ली, आपसे मतलब कैसे खुद को इंकरेज की कि आपको आगे बढ़ना जी। आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है, आप क्या बोल रही है? मैं ये बोल रही हूँ कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको आगे बढ़ना है? कुछ भी नहीं सुनाई आ रहा है। प्रेरणा कहाँ से मिला है वो पूछ रहा है। अभी भी आपका थोड़ा आवाज अटक रहा है मेरे साथ, पता नहीं क्यों। मैम मेरी आवाज आ रही है? जी जी। तो नेहा ने जो पूछा है वो ये है कि आपको जो प्रेरणा मिली है कि आपको वो हिम्मत कहाँ से आई कि आपको आगे बढ़ना है, मतलब पहले से आपके कम्युनिटी से आगे बढ़ के आप जो बाहर आई हैं, तो वो उसके बारे में बताइए। जब मैं छोटी थी और मेरे घर में मैं और मेरे बड़े भाई साहब थे, तो मेरे भैया स्कूल भी जाते थे और वो काम भी करते थे, पर हम लोग 6 बहनें थी और बहुत छोटे छोटे थे हम लोग, और मेरी मम्मी अकेली कुछ भी नहीं कर सकती थी, और मेरे पापा भी कुछ काम था, क्योंकि वही काम था हमारे पास, सांप पकड़ना, पर सांप नहीं थे। तो एक में जो मेरे गुरु है कालूनाथ जी, उनकी बेटी अच्छे डांसर और की डांसर है, मैं उनको अभी भी प्रणाम करती हूँ। और वो मेरे पे, तो मैंने सोचा कि वो हमेशा प्रोग्राम में जाते थे और पहले सिर्फ इंडिया में प्रोग्राम करते थे, और मैं उनको देखती थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनके साथ ये डांस करूं और मैं भी कुछ करके आगे जाऊं उनके साथ, क्योंकि हमेशा एक मन में रहता है कि हम लोग भी कुछ ना कुछ करें और कहीं घूमने जाएं और अच्छी अच्छी जगह देखें, सिर्फ ये रहता है। और मैंने सोचा कि जबकि फिर उन्होंने कहा कि ठीक है तुम मेरे घर पे आओ, तो मैं उनके घर पे काम करती थी, उनके घर पे झाड़ू निकालती थी, पोछे लगाती थी, उनका खाना बनाती थी, बर्तन धोती थी, सब कुछ करती थी उनके साथ, कि वो मुझे डांस सिखाए। और वो डांस घर पे नहीं सिखाते थे, पर कभी कभी वो लोग करते थे और मैं उनको देख के जितना भी मुझ में ये आया टैलेंट, तो मैंने उनको देख के उनको कॉपी किया और उनको फॉलो किया। उसके बाद जब मुझे आउट ऑफ इंडिया जाने का चांस मिला, तो हमारे एक और निरासी समाज से हैं, हामिद खान कावा, वो जयपुर से हैं, और उनके साथ मैंने यूरोप में 7 साल कंटिन्यूस काम किया। तो 6 महीने उधर रहना, फिर वापस आना, 6 महीने उधर रहना, वापस आना, ऐसे कुछ करके। तो उन्होंने भी मुझे बहुत सारा जो डांस का मेन पार्ट जो होता है रिदम, क्योंकि पहले हम लोग पैर में घुंघरू नहीं बांधते थे, क्योंकि घुंघरू सिर्फ क्लासिकल डांसर ही बांधते हैं, फोक डांसर कोई नहीं बांधते थे। कुछ लोग थे वो एक ही पैर में घुंघरू बांधते थे, तो उनसे भी मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, बॉडी को रिदम देना और कैसे स्टेज पे एंट्री करना और ऑडियंस के सामने कैसे डांस करना, मुंह के एक्सप्रेस एंड बॉडी एक्सप्रेस और पब्लिक को कैसे अपनी तरफ खींचना है, वो सब कुछ मैंने उनसे सीखा है। तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, हामिद खान जी को। और एक और हमारे गुरुजी हैं जो मेरे साथ में बैठे हुए हैं अभी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, सुरमिता जी है, तो ये मेरे जीजा जी हैं। और मैं जब छोटी थी तो इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और इन्होंने हमेशा मुझे बोला कि आप बहुत अच्छी डांसर हो और
इससे भी अच्छा आप कर सकती हैं, पर आपको थोड़ा मेहनत करना है, क्योंकि जितने भी हम लोग कालबेलिया डांसर हैं उनका सबका एक अलग अलग डांस का मूवमेंट है और प्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका है। तो इन्होंने मुझे बोला कि आप अच्छा कर सकते हैं और पर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने जैसा इन्होंने बोला, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था पहले कि रिदम क्या है, और बस ये सोचते थे कि बस हम लोगों को डांस ही तो करना है, बस कर लिया और हो गया, ये सोचते थे। तो इन्होंने बहुत सारा सपोर्ट किया मुझे रिदम समझाने के लिए। तो गुरुजी प्रणाम। एंड ये मेरा सबसे आगे जाने का, और उसके बाद धीरे धीरे मुझे सब कुछ समझ में आया, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया जाने से हमेशा अपना जो माइंड है वो बिल्कुल एक क्लियर हो जाता है, और कैसे लोग होते हैं उनके साथ बात कैसे करते हैं। और क्योंकि हम लोग जब पहली बार हम लोग एयरपोर्ट पे गए तो मुझे कुछ भी पता नहीं था कि कैसे अंदर जाना है और कैसे लगेज को जमा करवाना है, फॉर्म कैसे भरना है, सब कुछ एक अंदरूनी एक खुशी थी, पर थोड़ा डर भी था कि क्या होगा और पता नहीं फ्लाइट के अंदर बैठते क्या होगा, क्योंकि लोग हमेशा डरते थे जब फ्लाइट लैंड होती है तो मतलब उसको है ना ऐसे बोलते थे लोग हमें डराने के लिए, पता नहीं आपको बहुत कस के बांध देते हैं अंदर, और खाना भी नहीं मिलता, पानी भी नहीं, और कुछ भी नहीं अंदर, तो आप लोग कैसे जाएंगे और ये वो। तो मेरी मम्मी बहुत डरती थी पहले, कैसे करेंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मी, हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। पर कुछ नहीं ऐसा हुआ, और जितने भी लोग हैं अभी आउट ऑफ इंडिया के, इतने सारे फ्रेंड्स लोग हैं और इतने अच्छे से रखते हैं और सब लोगों का बहुत ख्याल करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ मेरे डांस को, और मैं चाहती हूँ कि मैं और ज्यादा मेहनत करूँ, क्योंकि अभी मैं जैसे कि भाई साहब ने बताया कि अभी मैं कुछ और ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ऑलरेडी 48 हूँ, तो आई थिंक कि अच्छा नहीं होगा। तो फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि अच्छा और करूँ, और शायद मेरी उम्र में थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है डांस के लिए, पर फिर भी मैं अभी भी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। थैंक यू मैम, आपकी स्टोरी बहुत ही प्रेरणादायक है। पिछले बार भी हम आशा मैम से मिले थे, आज आपसे मिल गए, और जैसे कि हमारे सर है राधा सर, उनसे तो फिलहाल हम अप्रैल से जुड़े हुए हैं, तो उनके हर सेशन में उनसे बातें करके और आपसे मिलकर एक अलग इंस्पायरेशन मिली है। मैं आपसे प्रेरित होकर कुछ लिखी हूँ, कहना चाहूंगी कि को हमने पढ़ा है तो उसका इंग्लिश भी अच्छा है, उसका हिंदी भी अच्छा है, और वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छी डांसर है। और क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ कि वो मेरी छोटी बहन है और वो इतना अच्छा डांस करती है, सब कुछ अभी भी सामने है लेकिन कुछ नहीं बोल रही है। जी मैम, तो आपके लिए और आशा मैम के लिए कहना चाहूंगी कि मुश्किलें चाहे कितनी भी हो तो आगे बढ़ते रहना, मुश्किलें चाहे कितनी भी हो तो आगे बढ़ते रहना, अड़चनें लाख आएंगी तेरे रास्ते पर, बस तुम मुस्कुराते रहना, बस मुस्कुराते रहना। थैंक यू मैम, आपकी स्टोरी बहुत ही अच्छी रही और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आशा करती हूँ कि आप इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे। और अब थैंक यू मैम, और सर को अब मैं हैंड ओवर करती हूँ। तो थोड़ा डांस सिखाइए। अभी हम सबको एक चीज बता रहा हूँ, मैं लेकिन पेंटिंग कर रहा हूँ। देखिए मेरा पेंटिंग चालू है, आप लोग भी चालू रखिए, मजा आएगा। तो चलिए, हैंड ओवर टू खातू बहन। प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज सी खातूस बहन few dance move and you people can learn. खातू बहन थोड़ा सिखाया सबको।
Fantastic, 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 Khatuban. This program is run by Anubhav Jagaran, our girls and our few boys, and we are working together with imafoundation.com and Vishnu Manchu Art Foundation from
Tirupati. Vishnu is the one of the key figure, one of the very important person for Indian contemporary art. He's really supporting lots of things, Vishnu Manchu. So we are working together for this lockdown time, and supported by Youth Sanskar Foundation, Phulwari Sanskar, and Youth Kalyan Samiti. So thank you very much, whatever you support. So today we are very happy. Our girls are done excellent. मेरा एक सवाल था मैम से। मैम, आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्योंकि हम फीमेल्स हैं, हमको बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है हमारे समाज में, तो आपको ऐसी क्या चीज प्रेरणा देती थी जिससे कि आपने इन सभी चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ी? मेरी जिंदगी में बहुत सारी दिक्कतें हुई मेरी शादी के बाद, पर क्योंकि शादी के बाद मुझे डांस करने के लिए मना किया कि आप डांस नहीं करेंगी, सिर्फ अपना घर देखिए और बच्चों के साथ रहिए और बस गांव में रहना है। पर मुझे मेरा डांस बहुत ही प्यारा था और अभी भी है, तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं अपना डांस कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे आप कुछ भी कहें, मुझे मेरे डांस से बहुत प्यार है और ये मैं कभी, जब तक मैं दुनिया में हूँ, मैं कभी किसी कीमत पे इसको नहीं छोड़ूंगी। तो बहुत सारी दिक्कतें थी मेरी जिंदगी में, मैंने बहुत ऐसे काम किए हैं जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट मैं बोलूंगी। जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड के पास कुछ भी नहीं था, उनके पास घर नहीं था, जमीन कुछ भी नहीं थी। जब मैं शादी करके वहां गई तो एक टेंट बना हुआ था, जो बंजारे लोग टेंट डाल के रहते हैं कहीं भी फुटपाथ पे, वैसा ही हमारा एक घर था। और मैं तो यहाँ सिटी में थी और शादी करके अचानक वहां गई तो मैंने देखा बिल्कुल लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है। और हम लोगों को कालबेलिया कम्युनिटी को गांव में भी लोग जहाँ पे राजपूत कम्युनिटी और अदर कम्युनिटी, बिश्नोई एंड जाट एंड मेघवाल, सब जो भी लोग हैं वहाँ पे वही लोग रह सकते हैं जो हमारे ही कास्ट पे थोड़े ऊपर हैं। एंड हम लोगों को हमेशा 10 या 12 किलोमीटर दूर गांव से रहने के लिए जगह मिलती थी, पर हम लोगों को वो अपने कुएं से पानी भी नहीं भरने देते थे, हम लोग खुद नहीं ले सकते थे। और हम पानी भी हमें वही लोग, हम लोग मांग के उनसे अपना पानी भी भर देते हैं, सब कुछ। और उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ कुछ भी नहीं है तो मैं क्या करूँ। एंड फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं एक डांसर हूँ और क्या आपकी लाइफ हमेशा ऐसी रहनी चाहिए या उससे थोड़ा चेंज होना चाहिए। और मैं थैंक यू मेरे हस्बैंड को भी बोलना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे कभी भी नहीं बोला कि तुम डांस मत करो। उन्होंने कहा ठीक है, तुम अपना काम कर सकती हो और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तो मेरे डांस में बहुत सारी दिक्कतें थी। मैंने मेरे हस्बैंड के साथ मैंने उनके साथ भी काम किया है, जैसे कि वो फार्मेसी काम करते हैं, मकान बनने पे ईंटें डालनी, सीमेंट का वो डालना, सब कुछ मैंने किया उनके साथ। पर मैं खुश थी कि वो मुझे डांस करने से मना नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास उस समय कुछ भी नहीं था। जब मेरी पहली बेटी हुई मुझे तो इतने कुछ भी नहीं, घर भी नहीं और पैसे भी नहीं, कुछ नहीं, तो मुझे कुछ ना कुछ उनका साथ में काम करना था। पर मैंने हमेशा उनके साथ काम किया और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरे डांस के लिए। तो मैं हम लोग लड़की लोग जितने भी हैं, हम लोग आज इस ग्रुप में, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो, क्योंकि लड़की लोग बहुत स्ट्रांग होती है। वो माँ होती है, बहन होती है, बीवी होती है, सब कुछ होती है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग जो है वो लड़की होती है। पर अपने को मेहनत करनी है तो आगे जाएंगे, अदरवाइज हम कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते। और हमेशा अपने आप पे इतना भरोसा होना चाहिए कि हम लोग ये काम कर सकते हैं। हम लोग बिल्कुल अनपढ़ है, फिर भी हम लोग आज आपके साथ में
इतने एजुकेशन लोगों के साथ हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना है और अच्छे से हिम्मत के साथ जो भी दिखते हैं उसका मुकाबला करना है हमें। इसलिए लड़की लोग सबसे आगे हैं। प्लीज आप सब लोग कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। और जितने भी भाई लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे क्षमा चाहती हूँ कि आप लोग भी कम नहीं है। अगर आप लोग नहीं है, बहन लोग आगे, बहन लोग आगे। आप लोग नहीं है तो लड़की लोग नहीं है, लड़की लोग नहीं है तो आप लोग नहीं है। दोनों नहीं, बहन ऐसे लोग से तमीज सीखा हम लोग ने। आकांक्षा और पूछिए, क्या पूछना सबको एक साथ चलना है। लड़कियों की भी हमें हेल्प करनी है। अगर कुछ काम में लड़की लोग कमजोर है तो मैं सारी भाई लोगों से यही बोलती हूँ कि प्लीज आप सब लोग उनको भी सपोर्ट करें और उनकी हेल्प करें, तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट होगा। देखिए, आपके लिए एक चित्र बना रहा हूँ, आपके लिए एक चित्र बना रहा हूँ। इवन आई एम डूइंग वन, दिस इज ओएट, आई एम डूइंग वन ड्राइंग फॉर यू, पेंटिंग फॉर यू। सून इज फिनिश, जब खत्म होगा आपको, जब आशा की जब पेंटिंग दूंगा आपको भी ये प्रेजेंट करूंगा। ये खत्म नहीं होगा आज, तो ये जब खत्म होगा आपको दिया जाएगा। और बहन लोग भी बना रहा होगा। तो ये जो ये चित्र ही नहीं है, जो औरत लोग है ना, बहुत ताकत है। हम मानता हूँ, मेरा मम्मी को देखा है, मेरा बहन को देखा है, मेरा बीबी को देखा है, मेरा बेटी को देखा है, और क्या बोलूं, हम लोग आप लोग से बहुत कुछ सीखने का है। तो आकांक्षा, और कुछ बोलने का तो बोलिए, हम लोग ज्यादा और एक और सवाल है मेरा। हाँ बोलिए। जो अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कयूम जी। हाँ, कायम जी। तो उन्होंने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया है। उन्होंने मुझे मेरा फेसबुक पेज बना के दिया, इंस्टाग्राम पेज बना के दिया एंड व्हाट्सएप बना के दिया। मुझे उन्होंने बोला कि आप इतने अच्छे डांसर है, बहुत टैलेंटेड है, तो प्लीज आप ये यूज करो। मुझे फोन चलाना नहीं आता था पहले। कायम भाई अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन कायम का होगा तो मेरा हेल्प किया है, तो थैंक यू वेरी मच कयूम जी। आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर चीज में, तो दिल से धन्यवाद। थैंक यू कायम भाई, थैंक यू। कायम भाई ने आपकी नाम सपोर्ट किया है, एक्चुअली आशा की नाम भी। अच्छा आकांक्षा, और कुछ पूछने का प्लीज? और नेहा, आकांक्षा? नहीं सर, नहीं सर, और कोई क्वेरीज भी नहीं है सर। आकांक्षा आप बहुत सुंदर हैं और बहुत क्यूट हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। आकांक्षा को थैंक यू मैम। हाँ आकांक्षा, आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी लग रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है आकांक्षा। बहुत थैंक यू मैम, ये बहुत टैलेंटेड। नेहा, आपको भी एक बार दिखाइए। हाँ नेहा, ये नेहा बेटी है, बहुत ही टैलेंटेड है। हम लोग की जो अनुभव जागरण ग्रुप में आवाज से ऐसा लग रहा है जो लड़की लोग के बहुत ही टैलेंटेड। नेहा, कुछ बोलने का आपको बाय कर देता हूँ यहाँ पे। और क्या आप लोग बताइए, आप लोग की बात सुनूंगा मैं। मैम से बोलना चाहती हूँ, खातून मैम से कि मैम आपका ड्रीम जरूर पूरा होगा, आप लाहौर जरूर जाएंगी। इसी तरह बस आगे बढ़ते रहिए और हमारे हिंदुस्तान का नाम आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच नेहा। भुवनेश्वर सर और खातून मैम, आशा मैम और यहाँ सभी गेस्ट का, सभी लोगों का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना समय निकाला और हमारे साथ इस इवेंट को ज्वाइन किए। आप ही लोगों की वजह से हमारा ये इवेंट सफल रहा। और सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी, राधा सर को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्हीं की वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि इस लॉकडाउन में, इस कोरोना के टाइम पे भी हम सभी एक साथ हैं। और क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है, सभी भारतीयों के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। हर साल आज के दिन हम बहुत अच्छे से सबके साथ मिलकर इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं। पर कहीं ना कहीं कमी खल रही थी कि इस बार हम अपने अपने घरों पर अकेले थे। पर राधा सर की कृपा ही है कि हम सभी आज एक साथ हैं। अनेकता में एकता का रूप देखने को यहाँ मिल रहा है। और इन्हीं के साथ सबको थैंक यू कहना चाहूँगी कि सभी आए और हमारे इवेंट को सफल बनाए। थैंक यू एवरीवन। And finally, I want to say all of my our viewer, thank you Hansraj, thank you Kanti Bhai, thank you all of you. Those are, I didn't mention the name, please forgive me.
love you all. Without you people, we can't do any program. So we love to see you again and again. We can do the more and more activity of our Indian cultural root, because our cultural root is very, 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 very top. I don't know, and very deep Israel. So I do remember my mom. I didn't realize until she passed away, be honest. I was focused in painting only. So, since 1999, 27 January, I realized how deep is our cultural root. We are lucky we can at least enjoy our culture. So many to do. Please welcome again. So thank you, Khatuban. Thank you, everyone. So we'll say bye-bye. Dayati, what do you say? We'll bye-bye. Akansa, Neha? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Thank you, everyone. Thank you, Khatuban. Bye, 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 bye. आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना बड़ा ये सब कुछ किया और मुझे और आशा को आपने चूज किया, तो उसके लिए भी मैं आपको दिल से थैंक यू। नहीं, आप लोग नहीं होता तो अपना देश की रूट खत्म हो जाता था। तो बहन लोग है इसलिए रूट रखा है। 1972 में सपेरा लोग की पाबंदी लगाया था, सांप पकड़ नहीं सकता है। बेटी लोग ने खाना लेके आया घर में, तो बेटी लोग है, घर है। जय हिंद, भारत माता की जय। Thank you. Bye-bye. Okay, bye-bye all of you. Bye.